Assalamu alaikum students. I'm your computer science teacher Muhammad Naveed Anjum from FSX Pada Senior Campus. I'm going to teach you the computer science subject in class 10th. This is our week 2 and we are going to start the lecture number 1. In this lecture we are going to discuss the basics of computer programming and how to solve a computer problem. Okay. Uh, First of all, you have given any kind of problem. You will learn here that which are the basic steps that we have to follow to solve the particular problem. So let's start. First of all, we are going to discuss the contents to be covered in this lecture. So first one is overview of the first term syllabus. I will overview the first term syllabus that we are going to discuss in that we will learn in the first term. Then we are going to discuss the introduction of the chapter that what we are going to learn in this chapter. At third point, understanding the problem. Okay. In this point, we are going to start the chapter from the beginning. Then steps involved in problem solving. So let's start with the overview of the first term syllabus. First of all, the book which is prescribed a textbook of computer science grade 10 National Book Foundation as Federal Textbook Board Islamabad. Okay, this is the book which you will which we are going to read in this term in this. So topics for first term that will be included in your exam. Total you have 5 chapters for the first term. Chapter 1, 2, 3 and 4 and 5. So we will be starting the chapter number 1, programming techniques. Students, basically in this chapter we are going to discuss some of the techniques which we are going to going to implement in our programs. So we are going to discuss 3 things in this chapter. Basics of the problem. Then we are going to discuss about the algorithm. Then at the third point, we are going to discuss about flowcharts. So first thing first, you should already know what is computer and how to operate the computer. So let's take a simple overview of the computer. Students, basically computer is a general purpose electronic machine invented to help people solve various problems. Okay, computer is a general purpose machine. You can use it for general purposes. Okay? It is invented to solve the problems of the people. Okay, basically, students, computer must be always programmed by the special person, okay, or a human being. The human being which program the computer is called programming. Okay, he used some of the basic techniques, okay, techniques for solving problems on computer. It means the programmer is a person who uses his knowledge and his techniques and his skills to program the computer so that every user can easily use the computer. Second definition of the computer is which we have already studied in the previous classes. Computer is an advanced electronic device that takes raw data as input. Okay. It means the computer is a device that takes raw data. Raw data means jumbled data. Okay, means the data which is not being arranged. Okay, it is jumbled. It takes raw data as input from the user. Okay,
and processes it under the control set of instructions. Okay. The instructions that are given by the programmer are known as computer program. Okay. Computer gives the result. The result of the computer is known as output, and then it also saves the result for the future use. Okay. It means computer is an electronic device that processes the raw data as an input, and then it performs some operation on the data, then it generates the output, and at the last it also allows us to save the results. Okay, next we are going to start the introduction of the chapter. Okay, understanding the problem. Okay, solving the problem is the main task of computer science. Okay, the basic purpose of computer science is to solve the basic मतलब जो आपके बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मतलब एवरीडे लाइफ में आते हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है, जो आपके मतलब सर्चिंग है, वेब सर्चिंग है, उन सबको सॉल्व करता है। ठीक है, उन सबको इजीली ये मैनेज करता है। प्रोग्रामर बेटा क्या कहते हैं इसमें, प्रोग्रामर का किरदार ये होता है कि प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ आ ह्यूमन सॉल्व प्रॉब्लम। तो मतलब प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि एक इंसान कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसके मुताबिक वो क्या करता है, एक प्रोग्राम डिजाइन करता है। प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो एक कोड डिजाइन करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं कोड को। तो वो एक कोड डिजाइन करता है फॉर सॉल्विंग a particular problem. There are many types of problems which computer can solve. So we are going to discuss some of them in this chapter. Okay. But steps involved in problem solving on the computer. So which are the steps which we have to use to solve a particular problem on the computer? So first step first step is the defining the problem. Before solving any kind of problem on the computer, you must be able to properly define the problem. What is the definition of the problem, and how you are going to solve that particular problem. If you don't know the basic definition of a problem, it means what the problem is asking to do, and the steps which you are going to follow to solve the problem. You will not be able to find the exact answer or exact solution of that particular problem. So defining the problem is the initial stage of the problem solving. It means it is the first stage of the problem solving. If you will be able to define the problem accurately, then the 80% chances are there that you will find the correct solution or correct answer of the problem. मतलब ये कि बेटा कि आपके पास एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा इसको अच्छी तरह रीड करते हैं। आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन पर रीड करें फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें। रीड करने का मकसद यही होता है कि आपको प्रॉब्लम पहले समझ आ जाए, मतलब क्वेश्चन पहले समझ आ जाए सीधा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन को समझना ये कोई भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप है। इस स्टेप को अगर छोड़ देंगे आप तो आप मैं भी एक्यूरेट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब बगैर देखे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं एग्जाम में। तो बगैर देखे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने शुरू नहीं करना, पहले उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, उसको समझना है, फिर उसका देखना है कि कैसे सोल्यूशन बन सकते हैं और कैसे हम इसको फॉलो करेंगे। ओके, स्टेप्स which we are going to study to define the problem. Okay, the first step is beta I have already told you that you have to carefully read the problem to understand what it tells. Okay, you should always read the problem
to understand what it is saying and what it demands. The second step is find out what the problems are to do. Okay. First one, you will read the problem. Second step is to find out that what is the requirement of the problem, that what it demands from us to do. ओके मतलब हमने ये समझना है कि वो हमसे रिजल्ट में क्या डिमांड कर रहा है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारी मतलब उस क्वेश्चन की उस प्रॉब्लम की डिमांड क्या है, तो हम उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। मतलब कि अगर सवाल कुछ और हो तो जवाब कुछ और दे दें तो वो तो गलत हो जाएगा, सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसकी डिमांड को हमने देखना है कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, प्रॉब्लम हमसे क्या आंसर लेना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि आप उस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीज़ें एज ए इनपुट मिल रही हैं। मतलब जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपकी क्या होंगी, इनपुट होंगी, वो आपकी इनपुट होंगी। तो आपने क्या करना है बेटा, उन सबको अलग अलग कर लेना है कि हमारे पास ये इनपुट है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि व्हाट आपने देखना है कि व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम अस, ओके, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। So here we are going to discuss some two problems, basically two problems which we are going to discuss. First one is a person is unhappy with the product he or she has purchased from a company. Okay, मतलब कि एक बंदे ने कोई चीज़ खरीदी है किसी कंपनी से या कोई सर्विस ली है, तो और वो इससे नाखुश है, मतलब वो उसकी पसंद नहीं आई। तो अब उसने इसका मतलब पहले अब ये प्रॉब्लम पहले हमने अंडरस्टैंड करना है, इस प्रॉब्लम में कहा क्या जा रहा है। और अब बेटा आप देखेंगे, आफ्टर रीडिंग द अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको क्या पता चला है, दैट एक मतलब कस्टमर है जिसने कोई चीज़ खरीदी है या कोई सर्विस परचेज की है और वो उसको पसंद नहीं आ रही, तो वो उससे नाखुश है। ये सब चीज़ें हमें पता चली हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड रिक्वायर्स द सोल्यूशन। अब इसका क्या है बेटा कि अब मतलब कोई चीज़ हमने बाजार से ली है, हमें वो पसंद नहीं आई, तो अब हमने इसका क्या करना है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपको समझ आ गई है। तो अब आपने क्या करना है इसको, इट इज अ, तो अब आपने क्या करना है बेटा कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अ जनरल जनरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब मतलब दूसरा प्रॉब्लम है बेटा, एक मैथ का प्रॉब्लम है जिसमें आपने क्या करना है, एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं, और ये प्रॉब्लम आपका क्लियर है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम में हमें पता नहीं चल रहा कि मतलब उसने कौन सी सर्विस ली है या कौन सी प्रोडक्ट उसने परचेज की है जो उसकी खराब हो गई है। तो अब सेकंड प्रॉब्लम में बेटा क्या है कि हमारे पास कोई भी मार्क्स होंगे, तो हमने उसको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। इसमें हमें मतलब कि इनपुट भी साथ में हमारे पास क्या होगी, क्लियर होगी, और आउटपुट भी हमें पता होगा मतलब हम कैसे कैलकुलेट करनी है। अब पहले वाले प्रॉब्लम में हमारे पास इनपुट कोई नहीं है। ओके, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास देखिए कोई भी इनपुट नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या चीज़ इनपुट एज ए इनपुट परचेज की है। तो बेटा इन दोनों प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बेटा दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। So first step was defining the problem. Second step is analyzing the problem. Okay, beta. At this stage, we will investigate the requirements. Okay, investigate the requirements and investigate the problem and gather. और हमने क्या करना है बेटा, गैदर करनी है इंफॉर्मेशन एज मच एज वी कैन। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे, उतना ज़्यादा हमें एडवांटेज होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो बेटा इन इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन मतलब हमारे माइंड में होने चाहिए, तो वो क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन वो होंगे वन बाय वन।
बेटा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर। क्या हम इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा। देखिए आपने बाजार से कोई चीज़ खरीदी है, कोई सर्विस खरीदी है और आपको वो पसंद नहीं आई, तो क्या हम इसको प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं? तो अभी मतलब आपके ज़हन में यही आंसर होगा कि हम इसको कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रॉन्गली प्रूव करेंगे, तो हम इसको बताएंगे भी सही आपको कि मतलब कंप्यूटर पे इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं है, क्या क्यों नहीं है, हम ठीक है या फिर क्यों है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। तो नेक्स्ट हमारा पे कोई क्वेश्चन होगा, व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो नंबर थर्ड पे है, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब कि कौन से स्टेप्स होंगे जो हमने फॉलो करने हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि मतलब जो पहला प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके जरिए वो स्टेप्स फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आपका हो, अभी तो हम जस्ट एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो स्टेप्स हैं आपके ये फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम वैसे तो आप किसी भी प्रॉब्लम ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है, व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड। ये बेटा मैंने आपको डिफाइनिंग वाले स्टेप में बताया था कि आपने पहले इनपुट्स और आउटपुट्स को एनालाइज करना है कि आपके मतलब प्रॉब्लम में जो हमें इनपुट्स हैं, जो हमें मतलब गिवन है वो चीज़ें क्या हैं, और जो उसकी डिमांड है, जो वो हमसे डिमांड कर रहा है प्रॉब्लम, वो चीज़ें क्या हैं, वो हमने पहले से अलग कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, बेशक वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, बेशक वो फिजिक्स का प्रॉब्लम हो, या बेशक वो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने उसके देखना है कि उसमें हमें गिवन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। ओके, जो गिवन होता है वो आपकी क्या होती है, इनपुट्स होती है, और जो आपकी डिमांड होती है वो क्या होती है, आउटपुट्स होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज हम इसको ये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आपको पता ही है कि एक प्रॉब्लम के कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैथ्स में भी और रियल लाइफ में भी। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट एंड व्हाई। कि आपका कौन सा सॉल्यूशन आपका बेस्ट होगा और क्यों होगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। कि आपका मतलब कौन सा सॉल्यूशन, आपके पास काफ़ी सॉल्यूशन है, तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन उसका बेस्ट होगा और वो क्यों बेस्ट होगा, हमने ये भी देखना है इसमें। नेक्स्ट, हाउ सॉल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। कि आपको सॉल्यूशन मिल तो गया है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन ऐसे करना चाहिए, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको मतलब रियल लाइफ में कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हम ताकि हम उसका मतलब कि फिजिकल सॉल्यूशन हमें मिल जाए उसका। इससे तो बेटा कंटिन्यू करेंगे। टू एनालाइज द प्रॉब्लम नंबर वन, ये तो थे जो आपके पास स्टेप्स जो मैंने आपको दिखाए हैं पीछे। ये सारे स्टेप्स आपके पास कौन से, जो हमने किसी भी प्रॉब्लम को रियल लाइफ में हमने मतलब एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में होने चाहिए। तो हम अब चलते हैं अपने दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ, जो हमने इस मतलब डिफाइनिंग स्टेज पर डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो बेटा आपका जो पहला प्रॉब्लम था वो क्या था, अ पर्सन और a person is unhappy with the with the service or product he she has purchased। कि उसने कोई भी एक पर्सन है, उसने कंपनी से कोई भी चीज या कोई सर्विस खरीदी है, तो वो उससे नाखुश है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। तो हमने इसको बेटा टू एनालाइज द प्रॉब्लम, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन द माइंड। अब प्रॉब्लम वन को हमने एनालाइज करना है, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, मतलब जो हमारे जो पॉइंट्स है वो हमने अपने माइंड में रखने हैं। वो आपके पॉइंट्स बेटा क्या होंगे, सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, नाउ द आउटकम वी वांट। कि हमें इससे आउटकम क्या चाहिए, हम इससे क्या आउटकम, क्या रिजल्ट चाहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमने सोचना क्या है कि थिंक अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। कि आपके माइंड में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिहाज से, और अब हाँ, और हमने इस प्रॉब्लम से क्या चीज़ अचीव करनी है, कि हम मतलब क्या चाह रहे हैं, तो हमें मतलब क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट रिफंड और रिप्लेसमेंट। मतलब आपने वो चीज़ वापस करनी है,
और उसके या फिर उसके बदले में नई चीज़ लेनी है। मतलब आपको रिफंड चाहिए, मतलब वापस पैसे चाहिए अपनी, जो आपने चीज़ खरीदी है और वो आपकी ख़राब है, तो आप उसके मतलब क्या कहना चाह रही हैं कि आपने उसको वापस करना है या फिर आपने उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसमें, बट यू लाइक देम टू प्रोवाइड। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि जो जिससे आपने वो चीज़ परचेज की है, तो वो आपको सर्विस, मतलब कि आप अक्सर तो ऐसे होता है कि हमें कोई चीज़ मार्केट में जाते हैं, तो हमें तो कोई अगर एक शॉप वाला हमें कोई चीज़ मतलब सही नहीं देता, तो हम नेक्स्ट टाइम उस शॉप पे कभी भी नहीं जाते। ठीक है, वो यही रीज़न होता है कि हम सोचते हैं कि मतलब कि अगर इसने पहले फर्स्ट टाइम मुझे चीज़ ख़राब दी है, तो सेकंड टाइम भी ये ख़राब ही देगा, तो हम इसलिए सेकंड टाइम उसके पास नहीं जाते। ठीक है, तो अभी हमने मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम चीज़ सोचेंगे कि क्या हम इसके पास अगेन जाना चाहेंगे दोबारा से, मतलब कोई चीज़ और नई चीज़ अगर सोल्यूशन इसका हो जाता है, तो ये नई नई चीज़ लेने के लिए हम इसके पास जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर हम जाना चाह रहे हैं, तो हमने मतलब कि स्टैंडर्ड अपने रखने हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई चीज़ उससे परचेज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन, कि हमने वो चीज़ ले ली है, तो अब हमने उसको बेटा वापस करना है या फिर हमने रिफंड करना है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, डिस्कस, मतलब उससे जो ओनर है उस दुकान का या उस कंपनी का या उस शॉप का, उस बंदे पर्टिकुलर बंदे से हमने बात करनी है। तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, कि हम कि मतलब हम हमारे क्या क्या राइट्स हैं, कि हम कैसे बात कर सकते हैं और हम उससे मतलब मतलब वो चीज़ क्लेम भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, अक्सर चीज़ें आप मार्केट से लेके आते हैं, तो वो कहते हैं, शॉप वाले कहते हैं कि ये चीज़ तो क्लेमेबल नहीं है, इसका तो कोई क्लेम ही नहीं है। ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है कि मतलब कि सामान वापस नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई बाजार से कोई चीज़ ली है, वहाँ पे मतलब लिखा होता है शॉप के ऊपर कि आपका खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होगा। मतलब वो जो चीज़ आपने परचेज कर ली एक दफ़ा, नेक्स्ट टाइम वो वापस नहीं करते, अक्सर ऐसे होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मतलब वो चीज़ वापस भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ओके, बट आपने फिर इसके बाद देखना है कि आपको एग्जैक्टली कंप्लेन क्या है, मतलब आपको वो चीज़ क्यों पसंद नहीं है, आपने ये भी देखना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो शॉप ओनर है उसको आपने राज़ी भी तो करना है कि मुझे ये कंप्लेन है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं ये चीज़ वापस करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने डिस्कस करना है ना शॉप ओनर के साथ या कंपनी ओनर के साथ, तो आपने इसके साथ डिस्कस करना है, तो उसमें आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इस जो प्रोडक्ट है या सर्विस में क्या डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको मतलब रखना नहीं चाह रहे, इसको वापस करना चाह रहे हैं, आप इसको रिफंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो रेलिवेंट पेपर वर्क होगा, जैसे आपके पास कोई उसकी रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट, ठीक है, कोई आपने आइटम लिया है बाजार से, तो उसकी आपके पास रसीद होती है ना, उसको तो आपने वो अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो उसके पास, तो आपने वो रसीद वापस करनी है उसको। ठीक है, तो आपने दिखाना है उसको। ठीक है, या फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम कोई ऑनलाइन चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट और जिसकी ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट है, वो की जो रिसिप्ट है वो हमारे पास होनी चाहिए लाजमी। और उसके बाद आपने कुछ देखना है कि एडवर्टाइजमेंट जिसकी वजह से आप मिसलीड हुए। मिसलीड मतलब क्या, कि मतलब आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई थी और उसमें कुछ और था, और जो चीज़ आई है वो कुछ और आ गई है। ठीक है, जैसे हम मतलब ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आती है चीज़ों की, कि मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। जब हम चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो मतलब जब वो चीज़ हम तक पहुँचती है, वो चीज़ कुछ कुछ और ही होती है। ठीक है, तो मतलब हमने देखा कुछ और होता है और हमें मिला कुछ और होता है। तो आपके पास बेटा वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए जिससे आपने वो चीज़ देखी थी और आपने उसको परचेज किया था, ताकि आप उसको क्लेम कर सकें कि मुझे एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया गया था और मुझे जो रिसीव चीज़ हुई है वो ये वाली हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा आपके पास है, फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट प्रोसेस इज। ठीक है, कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी का, उस शॉप का, ठीक है, उस इदारे का कि कंप्लेन प्रोसेस क्या है, कि किस प्रोसेस से आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट मेथड विच यू कैन अडॉप्ट टू कंप्लेन। ओके, बेटा आपने क्या करना है कि अगर मतलब कि शॉप आपके शहर में ही है या अगर आपके पास ही है, तो फिर तो आप उसमें कंप्लेन इजी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो चीज़ ऑनलाइन परचेज की है, ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, तो उसमें उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, आप उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे। ठीक है, उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करेंगे और उनके बेटा जो आपके पास उनके मतलब कंप्लेन प्रोसेस होता है उसको आप देखेंगे। ये कंप्लेन प्रोसेस को देखेंगे और उनके अपने लीगल राइट्स को आप देखेंगे।
कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, कि हम ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल से लिखा होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 1। अगेन इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। नाउ द आउटकम यू वांट। सबसे पहले क्या करना है आपने, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और आपके लीगल राइट्स क्या हैं। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन। आपने लीगल राइट्स क्या हैं और आपने मतलब देखना है जहन में कि मतलब हम उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, और आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास मतलब कि पेपर वर्क अपना रेडी रखना है, कि पेपर वर्क आपका रेडी हो, कि आपके पास रसीदें हैं, रिसीप्ट, एडवर्टाइजमेंट जिससे आपने वो चीज़ खरीदी है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। थर्ड है बेटा क्या, फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट प्रोसेस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लेंट प्रोसेस क्या है, कि आप उसको कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज की है तो उसके ऊपर प्रोसेस क्या होगा कि आपको वो ऑनलाइन ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। सेकंड इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था कि आपने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो बेटा इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड आपके पास होनी चाहिए, हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास हो मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। एवरेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने बेटा, टोटल मार्क्स। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने मार्क्स हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास है फार्मूला टू बी यूज टू कैलकुलेट द एवरेज, कि हमने किस फार्मूले से एवरेज को कैलकुलेट करना है। देखें दोनों प्रॉब्लम में कितना फर्क है। वो जो फर्स्ट प्रॉब्लम था आपका वो था रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपका क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो अब देखिए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको मतलब कि इनपुट्स और आउटपुट्स और फार्मूले का पता हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पहला प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है।